मतलब बेसिकली पढ़ने का मन नहीं करता था, काम करने का मन नहीं करता था। करंट अफेयर सेक्शन के लिए कूट्स प्लेटफॉर्म आई वुड रिकमेंड। कूट्स ने बहुत Let's go. Yeah, I'm like an addict. Do I? Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the very first episode of Cool. I'm Gussie Scott, a 15-year-old girl from Delhi, and your host for today. So, today we have Mr. Approve with us. So, let's not delay and talk to him. Hello, Approve. How are you? Hi Kashish, I'm fine. Hope you're also fine. Yeah, I'm great. So, I'm having some questions for you. Should I ask? Yes, please. Uh, Tell me something about Approve. Like, what does he do for living? His study. Who is Approve? I was born in Uttar Pradesh. Okay, I'm from Gorakhpur, a city in eastern UP. My family background is similar to the most middle class families. My father is a government employee. My mother is a housewife. I have one younger sister, and my schooling was from. I completed my 12th from Gorakhpur only. I studied in convent and then went on to complete engineering. And I mean, my life has been very orthodox, very typical middle class individual. Then I went on to eventually like a government exam, and I mean, it was very orthodox. But but the ups and downs have been very not so orthodox. I mean, I struggled a lot before I uh, achieved anything. So yes, it has been on many occasions it has been a very typical Indian life, and on many occasions, not many but few occasions, it has been a very unorthodox life. Congratulations, as it is complete qualified for CGL 2019 with all good rank of 4149. Thus, like, I'm curious to know what was the initial reaction was when you received your result? Like, when you got the result, how was your reaction? Was it surprise or was it like shocking or you was like, okay, now the next step is yeah. Yes, we received our results, as far as I remember, on 8th of April. 1:30 or 2 it was in the afternoon. I was studying actually. I was studying, and I took a break. I went on to have some coffee, and then a message popped on my phone screen that the results are declared. But I had an idea that we are going to get results this week or another week. We were very sure, but थोड़ा टाइम से पहले आ गया क्योंकि और आइडिया नहीं था कि रिजल्ट मतलब फाइनल होगा क्या. आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट that which whether I will get any post or not. Which post का तो सवाल ही नहीं आता है कि. तो फिर मैंने देखा रिजल्ट एंड द पोस्ट विच आई गॉट, मतलब आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो लोअर पोस्ट, मतलब जो कोई भी पोस्ट मिल जाए यार, सिलेक्शन होने से मतलब. तो मुझे ऑडिटर मिला, बाय द वे, auditor in CGDA department, which comes under the Ministry of Defense. So I was actually I was not very elated, very excited, but I was very content, very prospective these 3 years in terms of career and all this. So yes, I was happy, but not very excited as because we were expecting the results actually due to the that it might take 1 or 2 weeks or 1 or 2 months again due to the delay. But eventually we got the result, and that's how it went. Like, to achieve our goal, make a plan. आज मैं घर पे प्रैक्टिस करूँगा या ये करूँगा, पहले वो कंप्लीट करूँगा. तो what was your study
schedule like? And आपने कितने घंटे पढ़ाई की? How was the schedule? मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ 2017 में एक्चुअली, ठीक है। आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड आई वाज नॉट वेरी determined actually to for competitive exams and government exam and any sort of exam. So मतलब बेसिकली पढ़ने का मन नहीं करता था, काम करने का मन नहीं करता था, ये हाल था। तो फिर मतलब कुछ तो करना था फिर, तो फिर it took me time but then I decided to that I will go for SSC CGL 2018 something, yes 2018। उसके बाद फिर 2019 में फॉर्म भरा। उसके पहले तो थोड़े हल्की फुल्की पढ़ाई शुरू कर दी थी, दिन में 1-2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे करते थे। फिर जब फॉर्म भर दिया फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लगे। 2020 में प्री हुआ हमारा, 2021 में मेंस हुआ, 2022 में हमारा रिजल्ट आया। 3 साल बीते, मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन, एग्ज़ाम्स देना और सब कुछ। मैंने यही सीखा कि कंसिस्टेंसी के बिना आप नहीं कर सकते कोई भी एग्ज़ाम हो आज के टाइम पे। मतलब अगर वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इवन जेई हो, नीट हो, तो कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, दैट गोज विदाउट सेइंग। और कहता हूँ कि रिवीजन के बिना, प्रैक्टिस के बिना, कंसिस्टेंसी के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी ईजी हो, चाहे कितना भी कठिन हो। That doesn't, मतलब this is applicable to each and every exam, I mean competitive or non-competitive both. Yeah, right. That tension वाला तुमका हर एग्जाम में लगता है कि एक रात पहले पढ़ लो और पास हो जाए। हाँ, जैसे हम सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं या स्कूल का यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम देते हैं, तो अब वहाँ पे आप एक दिन पढ़ के पास हो सकते हैं। मतलब वो वहाँ पे भी सिर्फ पास ही हो पाएंगे 2 दिन पढ़ के, 4 दिन पढ़ के। लेकिन आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको अपने समय देना पड़ेगा, मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने एफर्ट्स के साथ। राइट, अगर कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। ओके, तो हम जैसे आपको ये एग्जाम क्रैक करना था तो उसके पीछे कोई इंस्पिरेशन रही होगी, तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गो ऑन दिस एडवेंचर? दिस इज काइंड ऑफ एडवेंचर ओनली कि यू वांट टू क्रैक दिस, लाइक ये इतनी आसान बात तो है नहीं, हर कोई इसे क्रैक कर नहीं सकता। तो एंड हाउ डिड योर फैमिली सपोर्ट यू? And what was the driving force behind your dedication? तो one of the most important reasons, चाहे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करता है, तो उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है। फैमिली सपोर्टिव रहती है तभी आप एग्ज़ाम, फिर वो आपको पीछे वो ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी मिलती है कि आप फेल करेंगे, आप लेट डाउन फील करेंगे या मतलब होपलेस फील करेंगे, तो आपकी फैमिली ही आपको एंड में साथ देती है। लेकिन जैसे होता है ना कि आपको अपने दम पे कुछ करना है लाइफ में। दिस स्ट्रेटजी दैट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ एंड दैट आई हैव टू अचीव समथिंग ऑन माई ओन। दैट वाज, एंड दिस वाज द पाथ आई चोज। मोटिवेशन बहुत ही, अब गोल चूज कर लिया है तो किसी को अब ये गोल चूज कर लिया तो इसी को पार करना है और सब कुछ इसके पीछे 3 साल इसके पीछे। हाँ, तो अपने डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए कहते हैं लोग, लेकिन डिसीजन जब आप ले रहे हैं तो उसको सही प्रूफ करने के लिए आप जितने एफर्ट्स लगा सकते हैं वो करने पड़ते हैं। What was your approach to the syllabus and the book you read as a beginner? जैसे कि द सिलेबस वाज वेरी सॉर्ट ऑफ फेमिलियर। आई मीन मैथ्स और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इस एग्ज़ाम में, क्वांट एंड इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने इंग्लिश के लिए एज अ बिगिनर, और अभी तक मैंने एक ही बुक पढ़ी है, सिर्फ वही बुक, नीतू सिंह मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट, तो केडी, अब तो केडी पब्लिकेशन है, तो वो एक बुक पढ़ी मैंने इंग्लिश के लिए एज अ बिगिनर। इसके लिए, क्वांट के लिए मैंने मतलब सेल्फ स्टडी या सेल्फ प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा फोकस किया। कुछ चैप्टर्स कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे पढ़ने चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए,
तो मैं यूट्यूब का सहारा लेता था। एक दो टीचर्स हैं, एक टीचर का ही बेसिकली लिया कि एक दो लेक्चर देखे। बाकी मैथ्स पे खुद से ही प्रैक्टिस की, खुद से ही कोशिश की करने की। एंड बाकी सब्जेक्ट्स हैं हमारे जीएस और रीजनिंग, तो वो तो प्री के हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो भी। तो वो भी नॉर्मल बुक्स, जीएस के लिए लूसेंट अपनी, खैर मेरी जीएस स्ट्रांग नहीं रही है कभी, और जीएस के लिए लूसेंट और करंट अफेयर सेक्शन के लिए कूड्स प्लेटफॉर्म आई वुड रिकमेंड। कूड्स ने बहुत हेल्प किया और उनका करंट का मटेरियल बहुत ही अच्छा है। बाकी हर स्फीयर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो करंट अफेयर्स में मैंने कूड्स की बहुत हेल्प ली। और लेटेस्ट स्टेजेस में उनके जो मैथ्स के क्विजेस थे या जीएस के क्विजेस थे, या तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की। Advice on how to prepare for current events, like given vastness of the subject, and any note-taking tips you would like to share with audience who are preparing for it? हाँ, तो जैसे जीएस में कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कम है आपका, तो उसमें लिमिटेड एफर्ट्स पुट करने की ही जरूरत मतलब है मेरे हिसाब से। जब तक आपका कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है बाकी, तो जीएस में एफर्ट करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि जीएस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि वो आप उसकी वजह से आपके मैथ्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स पे असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही आपका सिलेक्शन करवाएंगे, मैथ्स और इंग्लिश। अब 700 में 50 नंबर का जीएस होता है और 250 नंबर के मैथ्स होती है और लगभग 350 नंबर की इंग्लिश होती है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी चाहिए। जीएस के लिए लूसेंट ही सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। और करंट के लिए हैं कई प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन इस वक्त तो मैंने कूड्स से पढ़ा था, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली करंट के लिए। लिमिटेड एफर्ट्स के साथ जीएस में काम हो सकता है। सीक्रेट स्ट्रैटेजी सबकी होती है, सही बात है, हर इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रैटेजी होती है कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि दैट मतलब जो मैं करता था, बाकी लोग का नहीं पता, बाकी लोग भी करते ही हैं। जैसे मैं जब पढ़ाई करता था, तो जो टारगेट रहते थे, मतलब दिन का टारगेट रहता था, उसको डिवाइड कर देता था कि मुझे अगले 1-2 घंटे में इतना पढ़ना है, इतने क्वेश्चन लगाने हैं। अगर दिन में मुझे 100 लगाने हैं, 100 क्वेश्चन लगाने हैं या 50 क्वेश्चन लगाने हैं, तो उसी हिसाब से मैं, अगर 6 घंटे 8 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन लगाने हैं, तो मैं उसी हिसाब से डिवाइड कर देता था कि 2 घंटे में इतने क्वेश्चन, 2 घंटे उसके बाद ब्रेक लूंगा, उसके बाद 2 घंटे में इतने क्वेश्चन करने हैं। सो फ्रैगमेंट्स में मैंने अपने मतलब पूरे दिन को उस हिसाब से फिर प्रिपेयर करता था। उससे टास्क उतना बड़ा नहीं लगता था, उतना टायरिंग नहीं लगता था। सो वन थिंग एट अ टाइम, मतलब बेबी स्टेप्स के साथ ही आप प्रोसीड कर सकते हैं। Sharing the tips and yeah, absolutely. Dividing things in small parts help us to achieve our goals. So okay, so to what you just said कि आपने half कर दिया उसे. So to what extent did the time management play a role in your life? जी, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो आपने शुरुआत में 2-3 दिन पढ़ाई की, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके अगले 3 दिन आप नहीं पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सो प्रायोरिटी वाज स्टडीज ओनली। सो अगर मैं कम भी पढ़ रहा हूँ, अगर दिन में कम पढ़ रहा हूँ, काम कुछ आ गया, 4 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन मैं वो पढ़ूंगा, वो रोज़ पढ़ूंगा। सो आप ये होना चाहिए कि आप स्टडीज से डिस्कनेक्ट नहीं हो। काम सबको पड़ता है, काम कुछ ना कुछ आपके साथ लगा ही रहेगा, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रख के डेली पढ़िए, कम पढ़िए, थोड़ा डेली पढ़िए। लेकिन दिस वाज माय बेसिक स्ट्रेटजी। 1 घंटे 2 घंटे दिन में, अगर पूरा दिन भी बिजी जा रहा है तो 1 घंटे 2 घंटे आपको निकालना चाहिए किसी भी तरह। इस तरह से आप स्टडीज से डिस्कनेक्ट नहीं होगे और प्रिपरेशन उतनी अफेक्ट नहीं होगी जितना मतलब लगता है। Just the
sacrifice you made for this exam की मतलब मेरे को ये क्रैक करना है तो मैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फेसबुक Yes, yes. वगैरह वगैरह इतना यूज नहीं कर सकता जितना बाकी लोग करते हैं जितना बाकी फ्रेंड सर्कल करता है और समथिंग लाइक दैट. हाँ, ये बिल्कुल सही बात है. सोशल मीडिया पे आप टाइम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, ज़ीरो नहीं कर सकते हैं तो आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा. जितना मिनिमाइज कर सकते हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने व्हाट्सएप हटा लिया था लगभग 1.5 साल तक व्हाट्सएप हटाया था. और उसके बाद इंस्टाग्राम तो वैसे भी यूज़ नहीं करता था. रिसेंटली ही प्रोफाइल भी बनाई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. और लेकिन जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसका मतलब यूज़ तो मिनिमाइज करना पड़ेगा. दैट्स इम्पोर्टेंट. What was your sacrifice? आपने आपने क्या sacrifice किया था एक इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सेक्रीफाइस जैसे सोशल मीडिया सेक्रीफाइस, चलो सेक्रीफाइस नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मैंने दोस्तों से मिलना कम हो गया मेरा. जो मेरे दोस्त हैं कॉलेज के, स्कूल के, तो उनसे मिलना कम हो गया. सोशल लाइफ कोई पहले भी बहुत वैसी नहीं थी, लेकिन जो भी लिमिटेड सोशल लाइफ थी वो भी बहुत कम हो गई. एंड उसके बाद फिर सेक्रीफाइस, यही छोटे छोटे सेक्रीफाइस रहते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ दुनियादारी छोड़ के ही पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं आप, लेकिन यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट. हाँ, आप हर समय पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लाइटली भी नहीं ले सकते हैं. ये आप सोच रहे हैं कि 2 घंटे पढ़ के, 6 महीने पढ़ के, 4 महीने पढ़ के हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता. Yeah, exactly. So- This is what time management is. Yes. Okay. So, is this your first time attempting something like this? Like any failure related learning you would like to share with us? Yes, first time attempting. Yes, was not very interested in initially, but I have never put this much effort to any exam, any sort of this thing. So yes, this was very important to me. And Just technique, who for like current affair and something like that. How does school and its Telegram channel assist you in preparing for this exam? Like, who's the application? कूड्स मैंने मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने उसके प्लेटफॉर्म का यूज़ शुरू कर दिया था. जैसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्ज़ाम रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो एग्ज़ाम को जिस पैटर्न पे डिज़ाइन करते हैं क्वेश्चन वो लोग, तो कूड्स बहुत रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड करता है. कूड्स में इरेलेवेंट मटेरियल आपको नहीं मिलेगा. एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है उनका मैटर. उसके बाद उनका करंट अफेयर का सेक्शन बहुत ही अच्छा है. उसके बाद जो मैथ्स के क्विज़ेज़ हैं टेलीग्राम चैनल पे है. रेलवे के लिए मैंने वो क्विज़ यूज़ किया है, बहुत ही बेनिफिशियल है. तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली कूड्स, और उनकी टीम भी अच्छी है. वो लोग रिस्पांस अच्छा रहता है क्विज़ पे. और बाकी जितने भी ऑपरेट, अभी तो नया प्लेटफॉर्म भी है. आई वुड रिकमेंड, highly recommend Coots. Is there anything you want to share to students, or like any tips for them to how to crack this or how to prepare for that? Tips, I will not get into any philosophical aspect and that sort of, but I will try to keep it short. That if you are patient enough, you are patient enough, you have that perseverance inside you, then you can crack these any one day exam, or I'm talking about the one day exams only right now. So patience, perseverance, practice and consistency, ये आपके अंदर होने चाहिए. तो फिर ये आप एवरेज दिमाग के भी हैं तो आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि
मैं खुद एक बहुत ही मेरा एवरेज रहा है मेरा स्कूलिंग, और ये मैं कोई टॉपर नहीं रहा, मैं कोई ऐसे टायर 1 कॉलेज से नहीं हूँ, मैंने बीटेक एक प्राइवेट कॉलेज से किया। सो आपके पास पेशेंस है, परसिवरेंस है, आप ऑनेस्टी के साथ कंसिस्टेंटली 1.5 साल 2 साल अपने दे सकते हो, एफर्ट कर सकते हो, तो पक्का होगा सिलेक्शन, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। आज नहीं होगा, अगले अटेम्प्ट में होगा, लेकिन होगा। Thanks for sharing tips. I hope they are useful for others. And yeah, that's all for today. Thank you so much. Thank you so much for coming and accepting the invitation. Thank you, Kashish. It was my pleasure. It was a pleasure meeting you. Thank you so much for watching this and stay tuned for the next video. Till then, bye bye. Have a great day ahead.